حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی تلنگانہ آمد، 17 تا 21 دسمبر قیام کے لیے جامع انتظامات کی ہدایت۔ چیف سیکریٹری کے راما کرشنا راؤ کی اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ۔ میسی کے دورے کولکتہ کے موقع پر ہوئے ہنگامے کے پیش نظر حیدرآباد میں بڑھا دی گئی پولیس سیکیورٹی۔ اپل اسٹیڈیم میں ریونت ریڈی ٹیم بمقابلہ میسی ٹیم۔ اکھلیش یادو کا دورہ حیدرآباد، CM ریونت ریڈی کے علاوہ BRS ورکنگ صدر KT راما راؤ سے ملاقاتیں۔ انجن کمار یادو کی تقریب میں ہوئے شرکت۔ نیو ایئر سیلیبریشن کے لیے حیدرآباد پولیس کی سخت گائیڈ لائنز۔ ہوٹلز اور پبز کو پیشگی اجازت لازمی۔ ڈرگس، فحاشی اور نابالغوں کے داخلے پر مکمل پابندی۔ حالت نشہ میں ڈرائیونگ پر جرمانہ، قید یا لائسنس معطلی کا انتباہ۔ تلنگانہ میں شدید سرد لہر برقرار، حیدرآباد اور اضلاع میں ٹیمپریچر میں آئی خطرناک گراوٹ۔ معین آباد میں 6.3 ڈگری درج۔ 22 دسمبر تک نئی سردی کی لہر کا محکمہ نے جاری کیا الرٹ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی تلنگانہ آمد کے سلسلے میں 17 تا 21 دسمبر ان کی مجوزہ قیام کے پیش نظر چیف سیکریٹری کے راما کرشنا راؤ نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اہم اجلاس منعقد کرتے ہوئے تمام محکموں کو باہمی تال میل کے ساتھ جامع انتظامات کی ہدایت دی ہے۔ راشٹرپتی نلائم میں قیام کے دوران پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی و ٹریفک مینجمنٹ پلان تیار کیا جائے گا۔ فائر ڈپارٹمنٹ ضروری عملہ اور ساز و سامان کے ساتھ چوکس رہے گا، جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے خصوصی میڈیکل ٹیم ہمہ وقت تیار رہے گی۔ R&B کی جانب سے بیریگیٹنگ اور دیگر بنیادی سہولیات، GHMC و پولیس کی طرف سے سڑکوں کی مرمت اور برقی محکمہ کی جانب سے بلا تعطل برقی سربراہی کو یقینی بنانے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ راشٹرپتی نلائم میں 24 گھنٹے کے لیے سانپ پکڑنے والی ٹیمیں، بندروں کی شکایت کے تدارک کے لیے خصوصی اسکواڈ اور شہد کی مکھیوں کے ہنگامی تدارک کے لیے یونٹس رکھنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس اہم اجلاس میں DGP شیودھر ریڈی، CV آنند، VC سجنار، RV کنن، وکاس راج و دیگر سینئر عہدیدار شریک ہوئے۔ ایئر فورس اکیڈمی ڈنڈیگل میں آج کمانڈ گریجویشن پریڈ منعقد ہوئی۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے پریڈ کی سلامی لی۔ اس موقع پر شائقین کو دم بخود کر دینے والی فضائی کرتب بھی پیش کیے گئے۔ ایئر فورس کے مختلف شعبے جات میں اپنی ٹریننگ مکمل کرنے اور کمیشن حاصل کرنے والے کیڈٹس نے اس پریڈ میں حصہ لیا۔ آکاش گنگا، ایئر وائر ڈرل اور سوریا کرن ایئربیٹک ٹیموں نے شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کو حیران کر دیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جنرل انل چوہان نے کہا، آپریشن سندور ابھی بھی جاری ہے۔ بھلے ہی اس آپریشن کی شدت میں کمی آ گئی ہو، لیکن یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ جنرل چوہان نے کہا کہ جنگیں محض زبانی دعووں سے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ بامقصد کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے نئے کمیشن پانے والے آفیسروں سے کہا کہ وہ اہم وقت میں انڈین ایئر فورس میں شامل ہو رہے ہیں، انہیں اس کے لیے مکمل جذبے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیائے فٹ بال کے اسٹار کھلاڑی لیونل میسی کے دورے کولکتہ کے موقع پر ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے واقعات کے بعد حیدرآباد سٹی پولیس نے اپنی چوکسی میں اضافہ کر دیا ہے اور انتظامات کو مزید سخت کرنے پر توجہ مرکوز کر دی ہے تاکہ حیدرآباد میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آنے پائے۔ تلنگانہ پولیس کی جانب سے پہلے ہی سے انتہائی سخت اور مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ میسی کی آمد کے پیش نظر شائقین میں زبردست جوش و خروش ہے۔ میسی نے حیدرآباد آمد کے بعد فلک نما پیلس ہوٹل میں کچھ دیر توقف کیا۔ وہاں انہوں نے
मीट एंड ग्रीट की और फिर उपल स्टेडियम के लिए रवाना हुए। कोलकाता स्टेडियम में पेश आए हालिया कशीदा मनाजिर के बाद हैदराबाद पुलिस मुकम्मल अलर्ट पर है। शहर खुसूसन उपल स्टेडियम और अतराफ के इलाकों में 3 सतही सिक्योरिटी निजाम नाफिज कर दिया गया है। उपल स्टेडियम में मेसी का चीफ मिनिस्टर की टीम के साथ फ्रेंडली फुटबॉल मैच हुआ। इस मैच का मुशाहिदा करने के लिए कायदे अपोजिशन राहुल गांधी भी हैदराबाद पहुंचे हैं। अवामी जोश व खरोश और कोलकाता वाक़े को पेश नज़र रखते हुए पुलिस ने अपने इंतजामात में मज़ीद सख्ती पैदा की है और पुलिस के मुताबिक 3000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि निगरानी के लिए 450 सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन सर्वेलेंस भी की गई। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। अखिलेश यादव खानगी तकारीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे। उन्होंने जुबली हिल्स में रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही मुख्तलिफ स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों से वाकिफ करवाया। अखिलेश यादव ने तेलंगाना में सदर फेस्टिवल को बड़े पैमाने पर मुनक़्क़द करने हुकूमत के ऐलान का खैर मक़दम भी किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में यादव बरादरी इस अहम फैसले पर रेवंत रेड्डी को याद रखेंगे। इस मुलाकात के मौके पर रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, साबिक़ रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुलदस्ता पेश करते हुए अखिलेश यादव का अपनी क़यामगाह पर इस्तकबाल किया। साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश व समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने आज बीआरएस के वर्किंग सदर व साबिक़ रियासती वजीर केटी रामाराव से मुलाकात की। अखिलेश यादव कांग्रेस के साबिक़ एमपी अंजन कुमार यादव की दावत पर एक तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे। उन्होंने केटीआर से शख्सी मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर साबिक़ रियासती वजीर टी हरीश राव भी मौजूद थे। बीआरएस कायदीन ने समाजवादी पार्टी सरबराह का खैर मकदम किया और इनकी शाल पोशी की। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो जब भी केटीआर से मुलाकात करते हैं इन्हें खुशी होती है। जब कभी वो हैदराबाद का दौरा करते हैं वो केटीआर से मुलाकात का वक्त निकाल ही लेते हैं और बीआरएस कायदीन व कारकुनों की जानिब से हमेशा इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंतखाबात में जीत और हार सियासत का हिस्सा है। बाज़ औक़ात हमें अपना मुहासिबा करने का मौका भी मिलता है। उन्होंने कहा कि वो केसीआर से फ़ोन पर बात कर चुके हैं और बहुत जल्द इनसे भी मुलाकात करेंगे। केटीआर जी का और इनसे मिलकर के अपनापन लगता है। मैं हैदराबाद जब भी आता था मिला में, और इनके साथियों ने, पार्टी के लोगों ने हमेशा स्वागत के साथ सम्मान किया। और राजनीति में तो उतार चढ़ाव रहते ही हैं। राजनीति में जनता कभी स्वीकार करती है, कभी जनता हमें मौका देती है कि हम फिर देखें चीज़ों को। मैं जो बातचीत में जो बात हम लोग बात कर रहे थे, एक समय था कि हम लोग भी बहुत कम सीटें जीते थे, लेकिन जनता के बीच में रहे, उसी जनता ने हमारी मदद की और आज बीजेपी नंबर 2 पर है वहाँ। तो राजनीति का ये उतार चढ़ाव हम लोगों को देखते रहना चाहिए और कब जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी ये पता ही नहीं लगता। हमें उम्मीद है कि चीज़ें बदलेंगी और जो देश को ज़रूरत है कि देश प्रोग्रेस के रास्ते पे जाए, एक विजन के साथ जाए, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, नेगेटिविटी खत्म हो पॉलिटिक्स में, पॉजिटिव बातें हों, पॉजिटिविटी आए, प्रोग्रेस की बातें हों। हम लोगों की कोशिश होगी कि उसी दिशा में हम लोग काम करते रहें। मैं आदरणीय केसीआर साहब से भी मैंने बात की है और मैं बहुत जल्दी आकर के उनसे मिलूंगा। साबिक़ रियासती वजीर व बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के साथ फुटबॉल खेलने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि गुरुकुल स्कूल के तलबा व तालिबात समेत ग़िज़ा से मुतासिर होकर दवाखानों में शरीक हैं। हरीश राव ने आज दवाखानों का दौरा करते हुए समेत ग़िज़ा से मुतासिर होकर ज़ेरे इलाज तालिबात की आदत की और इनकी सेहत के ताल्लुक से दरियाफ्त किया।
انہوں نے ڈیوٹی ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے علاج و معالجے کے تعلق سے معلومات بھی حاصل کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ باغ لنگم پلی گروکل اسکول کی 90 طالبات سمیت غذا سے متاثر ہیں اور دواخانہ میں زیر علاج ہیں، لیکن حکومت کے کسی نمائندے نے دورہ نہیں کیا اور نہ ہی اس تعلق سے معلومات حاصل کی۔ چیف منسٹر اور دیگر ریاستی وزراء خود فٹ بال کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فٹ بال کھیلنے پر 100 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بجائے انہیں بچوں کے لیے ایک اچھا ہاسٹل تعمیر کرنا چاہیے تھا اور انہیں بہتر غذا فراہم کرنے پر توجہ کرنی چاہیے تھی۔ రెడ్డేమో విజన్ 2047 అని డబ్బా కొట్టుకుంటుండు, సంకల్ గుద్దుకుంటుండు. ఇది విజన్ 2047 కాదు, పాయిజన్ 2047 అయిపోయింది. ఇది విజన్ 2047 కాదు, పాయిజన్ 2047. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు రాష్ట్రంలో ఏదో ఒక మూలల కలుషిత ఆహారంతో మంచాల మీద పడ్డ పిల్లలే కనబడతా ఉన్నారు. పాయిజన్ తో ఇవాళ పిల్లలు ఆసుపత్రుల పాలవుతున్నారు. ఇప్పుడు గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు నేను కొంతమందిని పరామర్శిస్తే మంచిగా అయినాక మరి ఏడికి బిడ్డ అంటే నేను పోను, హాస్టల్కి పోను ఇంటికే పోతా అంటారు పిల్లలు. నేను ఇంటికే పోతా, ఇక పోను గవర్నమెంట్ హాస్టల్కు అని పిల్లలు వణుకుతున్నారు, భయపడుతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు నువ్వు తెలంగాణ రైజింగ్ అని డబ్బులు కొడుతున్నావు. ఇవాళ తెలంగాణ రైజింగ్ కేవలం ఆ ఫ్రంట్ పేజ్ యాడ్లు, పేపర్లలో ఫ్రంట్ పేజ్ యాడ్ల మీద, టీవీ అడ్వర్టైజ్మెంటుల్లో, హోర్డింగ్ల మీద మాత్రమే తెలంగాణ రైజింగ్. కానీ ఇక్కడ పిల్లలు మాత్రం ఆసుపత్రుల్లో మంచాల మీద ఫాలింగ్. నీదంతా హోర్డింగ్ల మీద రైజింగు, గురుకుల పాఠశాల ప్రభుత్వ పాఠశాల పిల్లలు ఆసుపత్రులలో బెడ్ల మీద ఫాలింగ్. हैदराबाद के नंदी नगर में वाक़ बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव की रिहाइशगाह हफ्ते के रोज त्योहार के रंग में रंगी नजर आई, जहां मुख्तलिफ अजला से आए हुए नौ मुंतखब सरपंच और वार्ड मेंबरान ने इन्हें मुबारकबाद दी। गुलाबी पर्चों और नारों से फजा गूंज उठी और सैकड़ों अवामी नुमाइंदों और पार्टी कारकुनों की मौजूदगी ने माहौल को पुरजोश बना दिया। केटीआर ने मुकामी इदारा जाती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाबी हासिल करने वाले तमाम सरपंचों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उन्होंने हुक्मरान कांग्रेस के दबाव में पुलिस के मुबैना गलत इस्तेमाल और साजिशों का डट कर मुकाबला किया और अवामी हिमायत से शानदार कामयाबी हासिल की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला के हल्के इंतखाब कोडंगल में भी बीआरएस सरपंचों की भारी जीत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अवाम आज भी गुलाबी पार्टी के साथ खड़े हैं। केटीआर ने इस बात पर जोर दिया कि सियासत नफरत या ताकत के बल पर नहीं बल्कि अवामी एतमाद और जद्दोजहद से आगे बढ़ती है और यही बीआरएस की असल ताकत है। तेलंगाना जागृति की सरबराह व रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने अपने जन्म बाटा प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखा है और आज उन्होंने इस प्रोग्राम के सिलसिले में लंगर हाउस में बापू घाट का दौरा किया। कविता ने बापू घाट से दरगाह शरीफ लंगर हाउस तक ऑटो में सफर किया। उन्होंने बापू घाट पर गांधी जी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाए। उन्होंने इस मौके पर वहां मौजूद अवाम से मुलाकात भी की, इनसे बातचीत की और इनके मसाइल की समाअत की। कविता ने बादअज़ां बापू घाट से दरगाह शरीफ लंगर हाउस तक ऑटो में सफ़र किया। इस मौके पर भी कई ख़वातीन और मुकामी अफराद ने कविता से मुलाकात की और इनसे बातचीत करते हुए अपने मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। कविता के दौरे के मौके पर जागृति कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की भी कसी तादाद मौजूद थी। कविता ने बादअज़ां दरगाह हज़रत सैयद शाह मीरा हसनी अल हुसैनी अल बगदादी लंगर हाउस पहुंचकर ज़ियारत की। उन्होंने कहा कि वो शहर के 3 असेंबली हलकों का दौरा कर रही हैं। आज वो कारवान हलके में आई हैं। वो चंद्रायन गुट्टा और बहादुरपुरा असेंबली हलकों का भी दौरा करेंगी। कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना जागृति जन्म बाटा चल रहा है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज एक दिन में हम दौरा कर रहे हैं। आज कारवान में है, फिर यहाँ से हम चंद्रायन गुट्टा भी जा रहे हैं और बहादुरपुरा भी जा रहे हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का आज दौरा है। तो आज पहले कारवान में बापू घाट हम गए थे। वहाँ पे बीआरएस के सरकार में भी और कांग्रेस के सरकार में भी बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन आज हालत ऐसा है कि बापू घाट के पास
ड्रग्स लेने वाले और अलग अलग इलीगल काम करने वाले रोज़ वहाँ पे आके वहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन सरकार कोई भी इंटरेस्ट लेके वहाँ सिक्योरिटी रखने का या कुछ वहाँ डेवलपमेंट करने का प्लान नहीं कर रहे। 150 फीट गांधी स्टैचू लगाते बोल के 55 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए बोले, आज तक उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ तीनों नदियों का संगम है, उस्मान सागर का, मूसी का और गंडीपेट का, ये तीनों नदियों का संगम है। बहुत एक पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ पे सहूलियत बिल्कुल नहीं है। आज जागृति का जन्म बांटा प्रोग्राम है बोल के वहाँ थोड़ा साफ सफाई हुआ, लेकिन अदरवाइज तो कुछ भी वहाँ साफ नहीं है। बहुत अच्छी जगह है, उसको यूटिलाइज करनी चाहिए, वहाँ का टूरिज्म बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद हम हुजूर बगदाद मीर हुसैनी के पास हाजिरी पेश करने के लिए आए हैं और यहाँ हम दुआ मांग रहे हैं कि तेलंगाना की पूरी आवाम को जो भी मसाइल है, जो भी तकलीफ है, वो उनको दूर करे। और यहाँ हमारे जितने भी दरगाह शरीफ है, इन सब के लिए फ्री करंट के लिए काम करने का मेरा इरादा है। यहाँ हमने उनसे पूछा और उन्होंने यहाँ के जो हेड प्रीस्ट है उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा इंस्टेड ऑफ फ्री करंट आप सोलर देने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा आइडिया है, चाहे मंदिर होने दीजिए, मस्जिद होने दीजिए, चाहे चर्चेस होने दीजिए, फ्री पावर के लिए अगर गवर्नमेंट फ्री में सोलर में छोटे छोटे लैंप्स या कुछ भी सप्लाई करेंगे तो बहुत एक अच्छा कदम होगा। अल्टीमेटली तेलंगाना जागृति जन्म बांटा का मकसद ये है कि जो लोगों के मसाइल हैं उनको हम उठाएंगे। हैदरा की जानिब से रामनगर इलाके में मायनम्मा गली में गुज़िश्ता 4 दहाइयों से जारी ड्रेनेज और रोड के मसाइल को हल कर दिया गया है। ये मसला कई साल से ज़ेरे इल्तिवा था और मुकामी अवाम को इसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही थी। रामनगर के मुकामी अवाम ने कमिश्नर हैदरा मिस्टर A.V. रंगनाथ से मुलाकात करते हुए इनसे इस मसले की यकसुई करने पर इज़हार तशक्कुर किया। मुकामी अवाम का कहना था कि वो गुज़िश्ता 40 बरसों से इस मसले की वजह से मसाइल का शिकार थे और इन्हें परेशानियां लाहक हो रही थी। उन्होंने 12 इस मसले की यकसुई के लिए हुकूमतों से और जिम्मेदार ओहदेदारों से नुमाइंदगी भी की थी, लेकिन ये मसला हल नहीं हो पाया था। कमिश्नर हैदरा ने शख्सी दिलचस्पी लेते हुए इस मसले की यकसुई की और ड्रेनेज को दुरुस्त करते हुए रोड को भी बेहतर बना दिया गया। मुकामी अवाम ने कमिश्नर हैदरा का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में नए साल की तकरीबात के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने होटल्स, क्लब, बार्स और पब्स के लिए सख्त रहनुमायाना उसूल जारी कर दिए हैं। 3 स्टार और इससे ज़ायद दर्जे के इदारे जो 31 दिसंबर की शब टिकट प्रोग्राम या तकरीबात मुनाक़द करना चाहते हैं, इन्हें कम से कम 15 दिन क़ब्ल पुलिस से इजाज़त हासिल करना लाजमी होगा। इंतजामिया को दाखिली व खारजी रास्तों और पार्किंग मुकामात पर CCTV कैमरों की तनसीब, मुनासिब सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती, ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने की सख्ती से हिदायत दी गई है। किसी भी प्रोग्राम में फहाशी, उरियानी, नामुनासिब लिबास या हरकत की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस के मुताबिक आउटडोर DJ और लाउड स्पीकर्स रात 10 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर बंद रखेंगे, जबकि इंडोर तकरीबात को मशरूत तौर पर रात 1 बजे तक इजाज़त दी जाएगी, बशर्ते कि आवाज़ की सतह 45 डेसिबल से तजावुज़ ना करे। प्रोग्राम में मंशियात, नशावर अशिया, असला, आतिशबाजी और नाबालिगों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। हद से ज्यादा टिकट फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने वालों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की भी वार्निंग दी गई है, जबकि पब और बार इंतजामिया पर लाजिम होगा कि नशे में मौजूद अफराद के लिए कैब या ड्राइवर का इंतजाम करके रखे। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शी टीमें भी शहर भर में तैनात रहेंगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर VC सजनार ने कहा कि मंशियात और ड्रग्स पर काबू पाने के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और मंशियात की तिजारत करने वालों पर रॉडी शीटर्स की तरह नजर रखी जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कमांड कंट्रोल सेंटर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें रियासती और मरकजी एजेंसियों के एहलकारों ने शिरकत की। इस इजलास में IB, DRI, NCB, एक्साइज, क्वांटर, इंटेलिजेंस, ईगल और दीगर एजेंसियों के ओहदेदार शरीक थे। कमिश्नर पुलिस मिस्टर सजनार ने कहा कि मंशियात की लानत से समाज को नजात दिलाना बहुत अहमियत का हामिल है। आज मंशियात की लानत बढ़ती ही जा रही है। इसको रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं और इस मामले में कोई नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मुजरिमों और मंशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक ही तरह की सख्ती कार्रवाई की जाएगी और मंशियात की लानत से मुआशरा मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में मंशियात के नेटवर्क को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना में शदीद सर्द लहर का सिलसिला जारी है, जहां विकाराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी और मेदक जैसे बुलंद मुकामात पर वाक़े ज़िले अजला सर्दी के एतबार से सर फेरिस्त बन गए हैं। शुमाली तेलंगाना के अजला के साथ साथ इन इलाकों में दर्जे हरारत खतरनाक हद तक नीचे चला गया है। संगारेड्डी में कम से कम दर्जे हरारत 6.1 डिग्री रिकॉर्ड और रंगारेड्डी में 6.3 डिग्री और विकाराबाद में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों मोइनाबाद और इब्राहिमपट्टनम में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार रही, जबकि शहर के मरकजी इलाकों HCU, श्रीलिंगमपल्ली, मोलाली, गच्चीबौली और BHEL समेत कई मुकामात पर पारा 7 से 10 डिग्री के दरमियान रहा है, जिससे शहरी शदीद ठंड का सामना कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्द लहर 8 से 10 दिन तक कम होने के आसार नहीं रखते। अगरचे कल से दर्जे हरारत 1 से 2 डिग्री मामूली इजाफा मुतवक्के है, तहम मौसम अभी भी सख्त सर्दी के जुमरे में आ रहे हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि 18 से 22 दिसंबर के दौरान एक और शदीद सर्द लहर तेलंगाना को अपनी लपेट में ले सकती है। अवाम से अपील की गई है कि वो रात और सुबह के औकात में सफ़र के दौरान एहतियाती बरतें और इख्तियार करें और ख़ास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें। याकुतपुरा हल्के में अवामी तरक्की के कामों की तेज रफ्तार निगरानी के लिए रोजाना बुनियादों पर इंस्पेक्शन जारी है। आज के दौरे के दौरान MIM MLA जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन में जारी CC रोड्स का काम, NP2 पाइपलाइन की तंसीब और तालाब कोटा में रेलवे अंडरपास ब्रिज साइट का जायजा लिया। इस मौके पर अवामी शिकायत को फौरी हल किया गया और कामों की तेज रफ्तार तकमील के लिए जमीन पर निगरानी की गई। दौरे में डॉक्टर समीना मैडम, कारपोरेटर तालाब चंचलम, MIM के प्राइमरी यूनिट के मेंबरान और इलाके के मुकम्मिल मकीन भी मौजूद थे। आज तालाब चंचलम डिवीजन याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया गया है। जो काम शुरू हुए हैं उसका इंस्पेक्शन भी करे हैं, जिसमें रोड है, NP2 पाइपलाइन है और मेन जो काम रेलवे ब्रिज से जो अंडरपास जा रहा है RUB, उसका जो तेज़ी से काम चल रहा है वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ख़ास तौर से देखे हैं। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से चल रहे हैं। उसका आए दिन मुकामी कारपोरेटर और मजलिस के तमाम सदर मुतमदीन एक्टिव वर्करों के साथ साथ इंस्पेक्शन मायना किया जा रहा है। जो काम तकमील हो गए हैं उसको देखते हैं, जो काम चालू है उसके अलावा जो काम अभी होने का बाकी है उसका नया प्रपोजल डला के सैंक्शन ला के काम कराने के लिए पूरे के पूरे मजलिस के जिम्मेदार उसमें दिलचस्पी लेके काम करा रहे हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मलकपेट में मुनक़दा एक तकरीब में सफ़ा बैतुल माल के तहत तालीम याफ्ता तलबा को तालीमी मैदान में खिदमात और कामयाबियों के एतराफ़ में सर्टिफिकेट्स दिए गए। इस साल 365 तलबा ने प्रोग्राम के तहत SSC इम्तिहानात कामयाबी के साथ पास किए। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से SSC के इम्तिहानात नोट्स के तहत काउंसलिंग, कोचिंग और तरबियती सेशन मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल से करवा गए हैं ताकि तलबा तालीम के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। तकरीब में वाज़ेह किया गया है कि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इम्तिहान पास करवाना नहीं बल्कि तलबा की हौसला अफजाई, तालीम के लिए दिलचस्पी और खुद एतमादी में इजाफा करना भी है। आइंदा साल के लिए तकरीबन 560 नए तलबा ने दाखिला लिया है, जो तालीम में तरक्की और माशराती बेहतरी की राह पर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सफ़ा बैतुल माल ने जहां दीगर खिदमात अब तक अंजाम दी हैं, इसकी 18 साल 19 साल खिदमात आप सबके सामने है। तालीमी मैदान में भी सफ़ा बैतुल माल ने एक्शन लिया। हमारे ट्रस्टीज़ ने फ़ैसला ये लिया कि तालीमी मैदान में भी हमको काम करना चाहिए। चुनांचे मुसलमान बच्चों और बच्चियों में 10th का एग्ज़ाम दिए बग़ैर जो ड्रॉप आउट हो गए,
उनमें काउंसलिंग की गई, उनके लिए कोचिंग का इंतज़ाम किया गया मुख्तलिफ महलजात में। उसके बाद उनको सफ़ा बैतुल माल की जानिब ही से पूरी फ़ीस अदा करते हुए 10th का एग्ज़ाम दिलवाया गया। ये सिलसिला 2020 से चल रहा है और अब तक 2156 तलबा और तालिबात ने कामयाबी हासिल की है 10वीं क्लास की, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये जो प्रोग्राम हुआ आप देख रहे हैं, कसीर तादाद में बच्चियाँ और बच्चे मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 365 तलबा और तालिबात ने इस साल कामयाबी हासिल की है और अगले साल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 560 तलबा और तालिबात ने दाखिला लिया है और इंशाल्लाह वो भी कामयाब हो जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि इसके ज़रिए से मुसलमान बच्चे और बच्चियाँ तालीमी मैदान में भी आगे आएँ, उनका मेयार बुलंद हो तालीमी मैदान में, और उनको आज हौसला भी दिया गया इस स्टेज के ज़रिए से कि वो IAS IPS तक पहुँचें और तालीमी मैदान में आगे आएँ, इसलिए कि इल्म ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए से कौमें तरक्की करती हैं। सर पिछले में ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। अभी जो आना चाह रहे हैं अभी नहीं, उसका तो टाइम दाखिले के जो है दिन रहते हैं वो मुकम्मल हो गए, अब उसके बाद के साल के लिए होगा। अब जो सर्टिफिकेट हासिल जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का सपोर्ट उनको आगे करते रहेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक बाकी सपोर्ट रहेंगे, सपोर्ट का मतलब ये कि टॉस के एग्ज़ाम की हद तक ही है, पूरा ऐसा नहीं है, यानी इसके एग्ज़ाम की हद तक हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। निर्मल और आदिलाबाद अजला में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के लिए पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। निर्मल में 800 एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि आदिलाबाद में 962 एहलकार 8 मंडलों और 192 पोलिंग मराकज़ पर तैनात किए गए हैं। अजला SP डॉक्टर जानकी शिरमला और अखिल महाजन ने बताया कि हसास पोलिंग स्टेशंस पर खुसूसी फोर्स, शेड्यूल पोलिंग इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम और सेक्शन 144 के निफाज समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग के दौरान फॉरेस्ट TGSP, ECTPC, मसल्ह पुलिस, खवातीन एहलकार और स्पेशल पार्टी फोर्स खिदमत अंजाम देंगे। आवाम से अपील की गई है कि वो बेखौफ वोट डालें, अफवाहों से गुरेज करें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर डायल 100 पर दें ताकि इंतखाबात पुरअमन और शफाफ अंदाज में मुकम्मल हों। इटूर नागाराम मेजर ग्राम पंचायत की नवमुंतखब सरपंच काकुला मर्री श्रीलता ने कहा कि इनकी कामयाबी आवाम की बेलौस मेहनत, एतमाद और हिमायत का नतीजा है, जिस पर वो हमेशा गांव के आवाम का शुक्रगुजार रहेंगी। जुमा के रोज मंडल मरकज में उन्होंने अपने शौहर BRS मुलुगु जिले सदर काकुला मर्री लक्ष्मी नरसिम्हा राव के हमरा अवाम के साथ खुशियां मनाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीलता ने अज़्म जाहिर किया कि वो गांव की हमाजहती तरक्की, बुनियादी सहूलतों की बेहतरी और अवामी मसाइल के हल के लिए पूरी दयानतदारी और तसल्सल के साथ काम करती रहेंगी। जिले कलेक्टर आदिलाबाद राज शीशा ने कहा कि खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चों की तालीमी, लसानी और समाजी महारतों में इजाफे के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी तदरीसी निज़ाम निहायत मौसर साबित होगा। ये बात उन्होंने आदिलाबाद में वाक़े डाइट कॉलेज इहाते में कायम भूपिता सेंटर में जदीद सहूलियात से आरस्ता AI लैब के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कही। जिले कलेक्टर ने कहा कि AI लैब से खुसूसी बच्चों की कम्युनिकेशन सीखने और इजहार ख्याल की सलाहियतों में नुमायां बेहतरी आएगी और हुकूमत इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़कर हर मैदान में आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रही है। इस मौके पर हैंडीकैप हेल्पिंग सोसाइटी के सदर मोहम्मद इमरान की कोशिशों को सराहा गया, जिनकी नुमाइंदगी पर गवर्नमेंट नंबर 1 स्कूल में 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के लिए 2 असतिज़ा की तकर्री अमल में आई। जिले कलेक्टर ने कहा कि खुसूसी बच्चों को आला तालीम के लिए टनूर के विकासम स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। భవితా కేంద్రంలో మనం ఒక ఆలోచన ద్వారా అందరూ సూచన సలహాలు కూడా తీసుకొని ఒక వినూత్నంగా ఈరోజు టెక్నాలజీ ద్వారా మన చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్కి విద్యా బోధన పెంచడానికి, వాళ్ళ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. సో చాలా సంతోషం. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఇందాక
మళ్ళీ అక్కడ లోపల కూడా చూస్తే ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో చాలా ఉపయోగం యాక్చువల్గా. మనం ఇందాక డాక్టర్ గారు మా ముందే డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తే మళ్ళీ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఐ పిల్లలు ఉన్నారు, సో వాళ్ళు జనరల్గా అంటే మన లిప్ మూవ్మెంట్ ప్రకారమే నేర్చుకుంటారు. కానీ ఇటువంటి ఈక్విప్మెంట్ వల్ల లిప్ మూవ్మెంట్ కాకుండా సొంత కూడా నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ డిపెండెన్సీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు తగ్గిస్తూ మళ్ళీ వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో నార్మల్ స్కూలింగ్ కానీ నార్మల్ వర్క్ కానీ కూడా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. आदिलाबाद जिले के यूथ मंडल मरकज में किसानों ने तकरीबन 10,000 क्विंटल सोयाबीन की फौरी खरीदारी न होने पर सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। किसानों ने इल्जाम लगाया कि मार्केट यार्ड में फसल खरीदने में ताखीर की जा रही है और जो सोयाबीन लोड करके भेजी गई वो रंग बदलने के बहाने वापस भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक जिले कलेक्टर खुद आकर मसला हल नहीं करते वो एहतजाज खत्म नहीं करेंगे और पीर तक खरीदारी ना होने की सूरत में बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। बादशाह पुलिस और मार्केट यार्ड के सेक्रेटरी की मदाखलत से किसानों ने आर्जी तौर पर एहतजाज खत्म करा। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तेलंगाना आमद 17 ता 21 दिसंबर क़याम के लिए जामा इंतजामात की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्ण राव की आला सतही जायजा मीटिंग। मेसी के दौरे कोलकाता के मौके पर हुए हंगामे के पेश नजर हैदराबाद में बढ़ा दी गई पुलिस सिक्योरिटी। उप्पल स्टेडियम में रेवंत रेड्डी टीम बा मुकाबला मेसी टीम। अखिलेश यादव का दौरा हैदराबाद। सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव से मुलाकातें। अंजन कुमार यादव की तकरीब में हुए शिरकत। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हैदराबाद पुलिस की सख्त गाइडलाइंस। होटल्स और पब्स को पेशगी इजाजत लाजमी। ड्रग्स, फहाशी और नाबालिगों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। हालत नशा में ड्राइविंग पर जुर्माना, कैद या लाइसेंस मुअत्तली का इंतबा। तेलंगाना में शदीद सर्द लहर बरकरार। हैदराबाद और अजला में टेम्परेचर में आई खतरनाक गिरावट। मोइनाबाद में 6.3 डिग्री दर्ज। 22 दिसंबर तक नई सर्दी की लहर का महकमा ने जारी किया अलर्ट। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।